Following a similar reasoning, Rutherford concluded that the alpha particle scattering experiment that first, most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected. Second, very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space. Third, a very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. From the data, he also calculated that the radius of the nucleus is about 10 to the power 5 times less than the radius of the atom. On the basis of his experiment, Rutherford put forward the nuclear model of an atom which had the following features. First, there is a positively charged center in an atom called the nucleus. Nearly all the mass of an atom resides in the nucleus. Second, the electrons revolve around the nucleus in the circular parts. Third, the size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. Okay, so these are the few of the observations which we saw in the last class. That first of all, most of the space inside the atom is empty. तो ये हम लोगों ने वो बॉल वाले एग्जांपल से देखा था. A man is throwing ball over a net. ठीक है? So if it is a wall, then the ball is going to bounce back, and if it is empty space, if it is just some wires in between, then it is not going to come back. Okay? So because most of the alpha particles go straight away through the atom without any deviation, so we can conclude that most of the space inside the atom must be empty. Second thing, very few of the alpha particles were deviated from the path. It means that there is some positive charge which occupies a very small mass. ठीक है? तो alpha particle क्या होता है? In last class I had told. बताओ अंजलि, what is alpha particle? Sir, helium ion. Helium ion. Sir, helium nucleus. Helium nucleus. ठीक है? He+2. Doubly ionized helium ion. ठीक है? This is your alpha particle. तो if a positive charge is getting deviated, मतलब ये क्या है? बीच में किसी positive charge से टकरा रहा है, right? Like charges repel each other. Yeah. So that is why if this is getting deviated, it means positive charge is there in the center. Everyone is clear on this? Yes, sir. And next thing, because only few of the incident alpha particles are getting deviated, so this goes to show that the positive charge is situated in a very small mass. अगर किसी बड़े मास पे होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे डेविएट हो जाते हैं. ठीक है? बट very tiny percentage of alpha particles are getting deviated. This shows that very small fraction of alpha particles, मतलब positive charge is occupied by a very small volume. Okay? And in the last class we had seen also किस तरह से ये रेशियो जो है 10 to the power 5 आता है. तो एटम का रेडियस किस ऑर्डर का होता है अंजलि? क्या यूनिट होता है एटॉमिक रेडियस का? Sir, angstrom. Angstrom. That is 10 to the power minus how much meter? याद नहीं है आपको? 10 to the power minus 10 meter. ठीक है? And radius of nucleus is of the order femtometer. How much is femtometer? Femtometer is 10 to the power minus प्रत्युष आप बताओ. Sir, -4. 4 नहीं होगा. Sir, should I? -4 अगर आपने बोला तो ये न्यूक्लियस तो आपका बड़ा हो गया एटम से, ऐसे हो सकता है? Yes, sir. No, sir. Sir, -15. -15. ठीक है? फेम्टोमीटर मैं बताया था ना, नैनो पिको फेम्टो एटो ऐसे. Yes, sir. नैनो पिको फेम्टो एटो. This is 10 to the power minus 9. This is 10 to the power minus 12. This is 10 to the power minus 15. This is 10 to the power minus 18. ठीक है? ये आपको क्या करना है? रिमेम्बर करना है. ठीक है? तो आप रेशियो देख सकते हैं क्लियरली रेडियस में 10 to the power 5 का
डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहला, पॉजिटिव चार्ज इज इन द सेंटर कॉल्ड एज न्यूक्लियस। तो वो पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे ऑक्युपाई कर रहा था उसको रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस, ठीक है। Then Yes, sir. next thing, nearly all the mass of the atom is situated in the center, ठीक है। तो पूरे एटम का मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है? बस इस रीजन में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। ये उसने प्रपोज किया। फिर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे सर्कुलर पाथ में घूमते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, कुछ पॉजिटिव चार्ज, और ये ऐसे ऐसे इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं? अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है। Yes, तो sir. डायग्राम में हमने इसको बहुत बड़ा बता दिया है, लेकिन असल में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हमने देखा कि एटम का 10 टू द पावर 5 टाइम्स छोटा होता है। तो इस डायग्राम में हार्डली एक पॉइंट की तरह होगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर सिचुएटेड अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। देन नेक्स्ट इज साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ एन आयन, ठीक है। तो ये सब क्या थे? उसके कंक्लूजन्स थे इन तीनों पॉइंट्स के। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. खुशी आपको? हेलो खुशी, कैन यू हियर मी? Yes, sir. चलो ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन? Yes, sir. ठीक है, प्रत्युष आगे पढ़िए ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। Drawbacks of Rutherford's model of the atom. The revolution of electron in a circular orbit is not expected to be stable. Any particle in a circular orbit would undergo acceleration. During acceleration, charged particles would radiate energy. Thus, the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. If uh, if if this were so, the atom should be highly unstable, and hence matter would not exist in the form that we know. We know that atoms are quite stable. ओके, तो रदरफोर्ड के मॉडल में ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक ये था कि उसके हिसाब से उसने ऐसा कुछ मॉडल बनाया। ओके, सर्कल से ड्रॉ होता है। इसको हमने क्या बोला? लेट अस से दिस इज द न्यूक्लियस, और इसके अराउंड आपके क्या है? अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. तो आप लोगों का काइनेमेटिक्स पढ़ाई हो गया, मतलब रेस्ट एंड मोशन फर्स्ट चैप्टर जो था। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो मेरे को एक चीज बताओ, कोई इलेक्ट्रॉन है, वो सर्कुलर पाथ पे v वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? Yes, sir. Yes, sir. क्यों? क्योंकि उसका वेलोसिटी हर वक्त चेंज हो रहा है डायरेक्शन की वजह से। डायरेक्शन की वजह से हर इंस्टेंट क्या हो रहा है? इसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है। वेलोसिटी जैसे ही चेंज हो, मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन कुछ उसमें हो रहा है, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो ठीक है, एक्सेलरेशन होने दो, उससे प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम ये आता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, चार्ज है, ठीक है। इट इज नॉट अ न्यूट्रल थिंग, इट इज अ चार्ज स्पीशीज, ठीक है। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, कुछ एनर्जी रिलीज करता है। ये वाला जो पॉइंट है, ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में क्या होता है, एनर्जी एमिट करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे इसकी क्या होगी, एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होगी तो क्या होगा ये, और इसकी तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा न्यूक्लियस की तरफ, और अल्टीमेटली क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस में टकरा जाएंगे और हमारा एटम अनस्टेबल हो जाएगा, एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। बट वी सी इन नेचर दैट एटम्स आर एग्जिस्टिंग, एंड नॉट ओनली दे आर एग्जिस्टिंग, दे आर क्वाइट स्टेबल, ठीक है। बहुत स्टेबल फॉर्म में हमारे एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस डिस्प्रूव्स द रदरफोर्ड्स मॉडल कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको नोट कर लो, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, इसको नोट कर लो। ठीक है, क्लियर करें इसको। Yes, sir. Yes, sir. ओके देन खुशी आप ये पढ़िए, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। In order to overcome the objection raised against Rutherford model of the atom, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of an atom. First, only certain special orbits, known as discrete orbit of electron, are allowed inside the atom. Second, while revolving in discrete डिस्क्रीट orbits, yes, sir. Discrete orbit, the electron do not radiate energy. ठीक है। This orbit or cell बस are बस called बस बस energy. आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो इसने क्या किया, अब हमारे नील्स बोर ने, ये हमारा नील बोर से, ठीक है, इसने क्या प्रपोज किया कि उसका मॉडल सही है, बस उसके मॉडल में ये थोड़ा सा इसने कुछ एक एडिशन प्रपोज किया, ठीक है। इससे ये आपका न्यूक्लियस है, बहुत बड़ा न्यूक्लियस बन गया, इतना बड़ा होता नहीं है, और फिर भी आप लोग समझ लो। मान लो कि ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अराउंड हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। तो नील्स बोर ने क्या काम किया, नील्स बोर ने ऐसा प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन्स जब भी हमारे घूमते हैं, ठीक है, तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट नहीं करते, वो किसी पार्टिकुलर एनर्जी लेवल्स में ही घूमते हैं। मतलब अगर इन अदर वर्ड्स आपको बताया जाए, इलेक्ट्रॉन आपका या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा, ठीक है। एटम इलेक्ट्रॉन आपका कभी भी इन दोनों के बीच में यहाँ पे नहीं जा सकता, यहाँ पे नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन या तो लेट अस से, इसको उसने अलग अलग एनर्जी लेवल बोला, दिस इज फर्स्ट एनर्जी लेवल, दिस इज सेकेंड एनर्जी लेवल, दिस इज थर्ड एनर्जी लेवल, ठीक है। तो या तो हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में होगा, या तो सेकेंड एनर्जी लेवल में होगा, या थर्ड एनर्जी लेवल होगा। कभी 1.5 एनर्जी लेवल नहीं हो सकता, या फिर 2.5 नहीं हो सकता, ठीक है। Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आता है या फिर यहाँ से यहाँ जाता है, तो कैसे जाता है, मतलब उसके बीच का कोई एनर्जी उसके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको शायद समझ में नहीं आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब होता है और यहाँ पे अपीयर होता है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन हमारा कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करते करते यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचता है, इधर से गायब हुआ और इधर क्या हुआ, अपीयर हुआ, ठीक है। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और सेकेंड चीज सर उसने तो बोला, सर बोलो। तो उस इलेक्ट्रॉन वो जो पास करता है, वो कोई रास्ता होगा ना जाने का? नहीं वो नहीं, वो बस disappear इधर से तो गायब नहीं होता है होता और है? यहाँ पे अपीयर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऐसे ऐसे करके यहाँ पहुंचा, ठीक है। यहाँ से गायब हुआ और सेम इंस्टेंट यहाँ पे प्रकट हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे ऐसे कैसे होता है, ठीक है।
बस इसको आप अभी के लिए ध्यान रखो कि हमारा एनर्जी या तो n इक्वल टू 1 हो सकता है या n इक्वल टू 2 हो सकता है, बीच में नहीं हो सकता, ठीक है। Yes, sir. देन सेकेंड थिंग इज अच्छा, ये एनर्जी कंटिन्यूअसली रेडिएट नहीं करता, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको चाहिए, ठीक है। उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर इसको मिलेगा तो यहाँ जाएगा। ऐसा नहीं है कि उससे अगर लेटस से x अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए और इसके पास x/2 अमाउंट ऑफ एनर्जी आया तो ये आधा चला गया फिर वहीं पे रुका हुआ है कि अब और आधा मिलेगा तो फिर आगे जाएगा, नहीं। अगर x मिला है तो यहाँ से यहाँ तक पॉसिबल है, अगर x से कम मिला तो ये मूव नहीं करेगा, इधर ही रहेगा, ठीक है। अगर 2x मिला तो x कर देगा, मतलब x अगर चाहिए इसको और 2x मिल गया तो पॉसिबल है, x से कम नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, while revolving in discrete orbits the electrons do not radiate energy। जब इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. चलो तो इसको समझ लो आप लोग, फिर यहाँ पे वही डायग्राम बना के दिखा होगा, ठीक है। तो अलग अलग शेल है, n इक्वल टू 1 लिखा है हमने, लेकिन आप लोग को शायद KLMN पढ़ना होगा, तो इसको K शेल बोलते हैं, जो पहला शेल होता है, ठीक है। फिर L, फिर M, ठीक है, KLMN, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। सर इसको ABC से क्यों नहीं स्टार्ट किया? K से पता नहीं क्यों K से स्टार्ट किया इसका मैंने, A से नहीं स्टार्ट किया, इसको K लेटर पसंद होगा नील्स बोर को, ठीक है। ओके चलो ठीक है, इसको क्लियर करें हम। Yes, sir. ठीक है, KLMN हमने बता दिया, n इक्वल टू 1 2 3 4। ओके, ये क्वेश्चन से आप लोग कर लेना। न्यूट्रॉन्स, प्रत्युष आप पढ़ो 4.2.4। Neutrons. In 1932, J. Chadwick discovered another subatomic particle which had no charge and a mass nearly equal to that of a proton. It was eventually named as neutron. Neutrons are present in the nucleus of all atoms except hydrogen. In general, a neutron is represented as n. The mass of an atom is therefore given by the sum of the masses of protons and neutrons present in the nucleus. ठीक है, 1 सेकंड। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स की हमारी डिस्कवरी कैसे हुई? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हमारे चैडविक ने की, ठीक है। तो न्यूट्रॉन, अब देखो ये दिस इज अ वेरी रिसेंट डिस्कवरी, 1932 बहुत ज्यादा पहले का टाइम नहीं है, मतलब 100 साल से भी कम है। इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बहुत पहले डिस्कवर हो गया था। देखो नील्स बोर की आप रिसर्च देखो, कहाँ पे है, 1922 में ही इसने क्या किया था, डाल दिया था, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई और न्यूट्रॉन्स वे डिस्कवर्ड थ्रू अ रेडियो एक्टिव रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम लिख देते हैं, आप लोग याद रखो, लेकिन क्या हो रहा है कैसे हो रहा है ये सब मेरे से पूछना मत, क्योंकि ये सब अभी डाल्टन का कुछ थ्योरी गलत होने वाला है, ठीक है। तो रिएक्शन में बेरिलियम शीट होता है हमारे पास, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हीलियम को बॉम्बार्ड करते हैं, तो हमारा कार्बन प्रोड्यूस होता है और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में अगर इधर जितना बेरिलियम है उतना ही इधर बेरिलियम होना चाहिए, इधर जितना हाइड्रोजन है उतना ही, सॉरी इधर जितना हीलियम है उतना ही इधर हीलियम होना चाहिए। लेकिन रेडियो एक्टिव रिएक्शंस वैसे नहीं होते, ठीक है। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस में एक एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट हो सकता है, बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वहां पे वायलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने इस साइड है उतने ही साइड होने चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जितने इस साइड है उतने ही साइड होने चाहिए, ठीक है। जैसे बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है। नीचे हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं, मास नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 4 + 2 दैट इज 6, और यहाँ पे भी कितने हैं, 6, ठीक है। देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे बेरिलियम में, बताओ अंजलि? Set 5. 5, ठीक है। 9 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसमें नीचे जो नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है 4 हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 न्यूट्रॉन और ठीक है जो भी है। तो यहाँ पे मास नंबर आप कैलकुलेट करो, 9 + 4 दैट इज 13, तो 12 इधर आया और 1 इधर आया, ठीक है। तो ये जो हमारा स्पेशीज क्रिएट हुआ, इसके अंदर प्रोटॉन 0 है लेकिन इसका मास कुछ आ रहा है, ठीक है। मतलब ये चीज हमारा कौन है, न्यूट्रॉन। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो through this reaction neutron was discovered, ठीक है। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, क्लियर कर रहे हैं इसको? Yes, sir. ओके अंजलि आप पढ़िए, हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द 4.3. How are electrons distributed in different orbits or shells? The distribution of electrons into different orbits of an atom was suggested by Bohr and Bridie. The following rules are followed for writing the number of electrons in different energy levels or shells. First, the maximum number of electrons present in a shell is given by the formula 2n square, where n is the orbit number or energy level index 1, 2, 3, etc. Hence, the maximum number of electrons in different shells are as follows. First orbit or K shell will be equal to 2 into 1 square, that is 2. Second orbit or L shell will be 2 into 2 square, that is 8. Third orbit or M shell will be equals 2 into 3 to the power 2, that is 18. Fourth orbit or N shell will be 2 into 4 to the power 2, that is 32, and so on. The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8. Electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shells are filled. That is, the shells are filled in a stepwise manner. Atomic structure of the first 18 elements are shown. Sir, what is this term? where? Sir, this word. कहाँ पे? Sir, सर जहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसके ऊपर में SCHEMATICA. schematically Sir, once more. schematically In figure 4.4, there's an activity given 4.2. Make a static atomic model displaying electronic configuration of the first 18 elements. The composition of atoms of the first 18 elements is given in the table 4.1. तो यहाँ पे एटम्स हमारे अरेंज कैसे होते हैं शेल्स में, उसका यहाँ पे फंडा दिया है। सबसे पहले क्या होता है, हमारे nth शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इज 2n स्क्वायर, ठीक है। तो k शेल मतलब n इक्वल टू क्या है हमारा, k शेल इज, हमने बताया था k शेल का होता है फर्स्ट शेल होता है, तो n इज 1, तो इसके अंदर कितना 2 into 1 स्क्वायर दैट इज 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे एकोमोडेट हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड शेल इज n इक्वल टू 2, तो इसके अंदर 2 into 2 स्क्वायर दैट इज 8 एलिमेंट्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे एकोमोडेट हो सकते हैं, ठीक है। देन थर्ड शेल इज m शेल दैट इज n इक्वल टू 3, इसके अंदर हमारे कितना 2 into 3 स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, ठीक है।
देन सिमिलरली n इक्वल टू 4 के लिए 2 into n स्क्वायर दैट इज 32। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो मेरे को ये बताओ p शेल के अंदर कितने एटम्स एकोमोडेट हो सकते हैं? Sir, 72. वेरी गुड, ठीक है, 72 होगा आंसर। सबको समझ में आया 72 कैसे आ रहा है? Yes, sir. तो p शेल के लिए हम n निकालेंगे, तो n इक्वल टू k के लिए 1 होता है, k l m n o p, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 6 आ जाएगी। और Yes, नंबर sir. ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? 2n स्क्वायर दैट इज 2 into 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 72। बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Second thing is maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost shell is 8, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन ही हमारे आउटरमोस्ट शेल में क्या होते हैं? एकोमोडेट हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन द गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड, ठीक है। तो बाहर के शेल में तब तक हमारा इलेक्ट्रॉन भरना शुरू नहीं होगा जब तक अंदर के शेल क्या हो? कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो, मतलब उसके अंदर 8 जब तक पूरे नहीं होंगे। बात समझ में आई सबको? Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू आप देख सकते हैं अलग अलग एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है उसके अंदर। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 है। तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 + 1, अंदर वाले शेल में 2, फिर बाहर वाले पे 1, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 + 2, इस तरह से करते करते यहाँ पे नियॉन में क्या होता है? 2 + 8, ठीक है। अब सेकंड शेल भी भर गया, सॉरी फर्स्ट शेल भी भर गया 2 इलेक्ट्रॉन से, सेकंड शेल भी भर गया 8 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। then from the next case हमारा थर्ड शेल शुरू होता है, सोडियम मैग्नीशियम, दिस इज 2 + 8 + 1, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 1, देन अगेन 2 + 8 + 2, ठीक है। इस तरह से करते करते फाइनली यहाँ पे 2 + 8 + 8 पे पहुंचता है, ठीक है। Sir, 2 + 8 + 9 हो सकता है? नहीं, 2 + 8 + 9 नहीं हो सकता। सर, उसके लिए दूसरा शेल लाना होगा। उसके लिए दूसरा शेल लेना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. ओके, ओके, नोट कर लिया इसको? हेलो, Yes, sir. इसको नोट कर लो जल्दी से। Sir, हो गया. Okay. Then next thing is your valency. ये चैप्टर तो बहुत लंबा है, ठीक है। We will read. खुशी आप पढ़िए valency. We have learned how the electrons in an atom are arranged in different shell or orbit. The electrons present in the outermost shell of an atom are known as valence electrons. From the Bohr's-Bury scheme, we also know that the outermost shell of an atom can accommodate a maximum of 8 electrons. It was observed that the atom of element having a completely filled outermost shell show little chemical activity. In other words, their combining capacity or valency is zero. Of this insert element, the helium atom has two Insert नहीं, electrons. inert, of these inert elements. Yes, sir. The helium atom has 2 electrons in its outermost shell, and all other elements have atoms with 8 electrons in the outermost shell. The combining capacity of the atom of other elements, that is their tendency to react and form molecules with atoms of the same or different element, was thus explained as an attempt to attain a fully filled outermost shell. An outermost shell which has 8 electrons was said to possess an octet. Atoms would thus react so as to achieve an octet in the outermost shell. This was done by sharing
gaining or losing electron. The number of electron gained, lost, or share so as to make the octet of electron in the outermost shell gives us directly the combining capacity of the element. That is the valency discussed in the previous chapter. आगे फॉर एग्जांपल For example, hydrogen, lithium, sodium atom contain one electron each in their outermost shell. Therefore, each of them can lose one electron, so they are said to have valency of 1. Can you tell what is valency of magnesium and aluminium? It is 2 and 3, respectively, because magnesium has 2 electrons in its outermost shell and aluminium has 3 electrons in its outermost shell. If the number of ओके 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 electrons in ओके the outer तो यहाँ पे आप टेबल से जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर क्या है, उनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना अकोमोडेट हो सकता है उतना ऑलरेडी है, ठीक है। जैसे हीलियम, हीलियम के अंदर एक ही शेल है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहला शेल हमारा 2n², दैट इज 2 × 1², 2 इलेक्ट्रॉन्स इट कैन होल्ड। तो हीलियम का क्या है, उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड। नेक्स्ट हमारा आता है नियॉन, ठीक है। नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8, ठीक है। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो 2 + 8, तो इसलिए इसका वैलेंसी क्या होता है 0, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। नेक्स्ट इज योर आर्गन। आर्गन क्या काम करेगा, दिस इज अगेन 2 + 8 + 8, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड है। तो दिस इज ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स जिसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, जितने अकोमोडेट हो सकते हैं उतने ऑलरेडी हैं। These compounds are called as inert gases, ठीक है। Yes, sir. या फिर इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नोबल गैसेस, ठीक है। क्योंकि ये क्या होती है, रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इसका ऑलरेडी आउटर मोस्ट शेल क्या है। बाकी एलिमेंट्स जो होंगे जिनका आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 से ज्यादा, सॉरी 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, जिनके आउटर मोस्ट शेल में क्या है 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या अटेम्प्ट करते हैं कि किसी भी तरह 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, और इधर किसका एग्जांपल दिया है, लिथियम सोडियम का, ठीक है। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सोचता है अगर मेरा 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने बचेंगे, लिथियम के 2, ठीक है। तो हमारा आउटर मोस्ट शेल इसका फिल हो गया, ठीक है। तो ये लिथियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और क्या बना देता है Li+, ठीक है। Yes, sir. Li+ क्यों किया, Li- क्यों नहीं कर रहा है, सर क्योंकि क्योंकि ये चार्ज बैलेंस रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 + 1, तो चार्ज हमारा बैलेंस रहेगा अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो। अब लिथियम Li+, Li का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, Li का पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। Li+ जब इसने बनाया तो इसने क्या किया, दिस इज Li, ठीक है, इसको कंफ्यूज मत करना, दिस इज योर Li, ठीक है। तो Li = था हमारा 2,1, Li+ क्या हो जाएगा, बाहर वाला 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 बचा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, 1 लूज कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बात समझ में आई सबको? Yes, sir. सिमिलरली इसकी भी 1 हो जाएगी। इसके बाद ऑलमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है, इसकी वैलेंसी 2 हो गई। ये भी 2, तो इसकी भी वैलेंसी 2 हो गई। इसकी भी क्या हो गई, 3 हो गई, इसकी 4 हो गई। इसकी फास्फोरस की 3 और 5 दोनों हो सकती है। 3 और 5 दोनों कैसे हो सकती है, बताओ वाले को? या सर तो ये ये बोलो। सर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन भी कर सकता है और 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज भी कर सकता है। ओके, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और फिर 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ये पांचों चला गया आपका, 2,8 बन गया कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो 2,8,8 हो जाएगा, ठीक है। उससे भी इसका क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. तो इसीलिए यहाँ पे फास्फोरस हमारा क्या करता है, 2 तरह की वैलेंसी शो करता है, दैट इज +3
सॉरी +5 and -3, ठीक है। सर सिमिलरली ऐसा किसी और के साथ क्यों नहीं होता? ऐसा किसी और के साथ क्यों नहीं होता? किसके साथ जैसे कराना चाहते हैं? नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन, यस हाँ, सर, नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको, ठीक है। यस सर, जैसे जैसे साइज हमारा एटम का बड़ा हो जाता है, तो जैसे साइज बढ़ेगा तो बाहर के इलेक्ट्रॉन पे हमारे न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, वो टाइम साइज के साथ क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है। जैसे दूर अगर कोई दो पार्टिकल्स है तो उसके बीच अट्रैक्शन कम होता है, पता है ना। यस सर, सिमिलरली अगर कोई पार्टिकल्स आसपास है तो उसके बीच अट्रैक्शन ज्यादा होता है। सिमिलरली फास्फोरस के केस में क्या है, साइज आपका नाइट्रोजन से बड़ा है, ठीक है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा नहीं है, तो वो आराम से लूज कर सकता है। बात समझ में आई? यस सर, ओके। फिर हम लोग निगेटिव वैलेंसी भी कुछ कुछ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का देख लो, नाइट्रोजन के बाहर में 5 है, तो ये क्या कर सकता है, 3 और इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए बाहर से, तो यस इसका सर, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा, तो इसलिए इसकी वैलेंसी भी 3 होती है माइनस में, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन का क्या होगा, 2 होगा माइनस में, फ्लोरीन का क्या होगा, 1 होगा माइनस में। इज इट कम्प्लीटली क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ओके, तो चलो फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.